एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंदो सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बिन गुरु देखे नींद न आए, मैं बिन गुरु देखे नींद न आए, मैं बिन गुरु देखे नींद न आए, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगा, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगा, मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे, मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। मधुसूदन मेरा मन तन प्राण हो हर बिन दूध अवर न जाना, मधुसूदन मेरे मन तन प्राण हो हर बिन दूध अवर न जाना, कोई साजन संत मिले वड पागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो, कोई साजन संत मिले वड पागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो, मैं हर प्रभ प्यारा
जीव। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे, मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। वाहिगुरू। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। अपने प्रीतम के, 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 अपने प्रीतम के। अबीर है जारी, काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल को कित गुण काली, कित गुण काली।
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक लोहार जंगल में गया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, सर पर पानी का घड़ा है। एक लोहार पक्की लकड़ी ढूंढने निकला है, क्योंकि लोहार को अपने लोहे को पिघालने के लिए कोयले चाहिए, कोयले बनाने के लिए पक्की लकड़ी चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पर पानी का घड़ा रखा है कि प्यास लगेगी, तो जंगल में गया है, कुल्हाड़ी है उसके पास। दिखाई दिया एक पेड़ जो सूख चुका है, पक्का है, लकड़ी पकी हुई है। घड़ा पानी से नीचे रखा और कुल्हाड़ी चला दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कुल्हाड़ी चली, खून का फुवारा छूटा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आह निकली और खून का फुवारा छूटा। वो घबरा कर कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। ध्यान से देखा तो वो लकड़ी नहीं थी सूखी, पेड़ों के बीच में कोई तपस्या कर रहा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरीर सूख चुका है, लकड़ी में और शरीर में फर्क ही नहीं नजर आ रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जटाएं ऐसी हो चुकी हैं जैसे घोंसला बन चुका है सर पर, पक्षियों ने घोंसला बना दिया है। इतनी बंदगी, इतनी तपस्या। जब आह निकली, खून का फुवारा छोटा, वो माफी मांगने लगा कि मुझसे भूल हो गई। तो जिसे कुल्हाड़ी मारी वो कौन थे? भगत फरीद जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका आप शब्द श्रवण कर रहे हो, इस शब्द में ऐसा ज्ञान दिया उन्होंने, ऐसा ज्ञान दिया है। एक्चुअली हमें ज्ञान दिया है अपनी बात करके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था देखो कहाँ पे, बंदगी कितनी कि सर पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। पेड़ में और शरीर में फर्क नहीं दिखाई दे रहा, और मन को कहाँ रखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे, भाई वो कलक्कड़हारा पूछता है लोहार के, आप यहाँ क्यों बैठे हो, कब से बैठे हो? कि सर पर घोंसला बढ़ गया चिड़िया का, लकड़ी की तरह सूख गए हो। लकड़ी में और पेड़ की लकड़ी में फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपके शरीर में और पेड़ की लकड़ी में। क्या कर रहे हो आप यहाँ बैठकर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी आगे से पूछते हैं, शेख फरीद जी, भाई तू यहाँ पे क्या करने आया है? कहने लगे, मैं पक्की लकड़ी ढूंढने आया हूँ। तो ये पंक्तियाँ फरीद जी ने उच्चारण की है, श्रवण कीजिए। और क्या कहा है? कंद कुहाड़ा सिर खड़ा, वन के सर लोहार, फरीदा हो लोड़ी शोह अपना, तू लोड़े अंगिया। फरीदा हो लोड़ी सह अपना, तू लोड़े अंगिया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, तू जंगल में आया है कुल्हाड़ी लेकर, सर पर घड़ा पानी का लेकर, कोयले के लिए लकड़ी ढूंढने। मैं यहाँ पर खुदा को ढूंढने बैठा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। खुदा को ढूंढने, तो लकड़ी ढूंढने आया है, मैं खुदा को ढूंढने आया हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं साध संगत जी बैराग की अवस्था। बैराग, इस अवस्था में
जैसे किसी इंसान का कुछ बहुत कीमती खो जाए, ध्यान से समझना बैराग होता क्या है, इसके कई पहलू हैं। किसी इंसान की कोई बहुत कीमती वस्तु खो जाए तो उसका ध्यान उसी में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस मिल जाए वो, ध्यान उसमें लग गया, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के ज़माने में मोबाइल ले लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का मोबाइल खो जाए बावरे जैसी हालत हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए तो यही सबसे कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की बहुत कोई कीमती चीज़ खो जाए, वो उसका ध्यान उसी में लगा रहता है। और जिसे ये ज्ञान हो जाए कि मुझसे परमेश्वर खोया हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसे बैराग की अवस्था हो जाती है साथ संगत जी। दर्शनों की प्यास जाग जाती है और फिर ऐसी हालत हो जाती है जैसी भगत फरीद जी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो, काली कोयल तो कित गुण काली, ये बैराग का शब्द है, बैराग की अवस्था का। एक एक पहली शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बावल होई सो सो लोरो। तय सह मन में किया रोष, मुझ अवगुण सह नाही दोष। तप तप लोहे लोहे, शरीर मेरा तप रहा है, हाथ मल रहा हूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों क्यों हाथ मल रहे हैं? आदमी हाथ कब मलता है? जब पछतावा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते नहीं हाथ मलते रह गया, समय तो निकल गया इसके हाथ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना अक्सर ये हाथ मलते रह गया, ये वही पॉइंट है। हाथ मरो, मैं अपने हाथ मलते रह गया। किस बात के लिए पछतावा है? कि मेरी जवानी चलेगी, मैंने कुछ नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी जवानी चलेगी, मैंने नाम नहीं जपा, परमात्मा को तरफ प्यास नहीं जागी मेरी, बुढ़ेपा आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सोचकर मेरा शरीर तप रहा है, कांप रहा है, मेरे हाथ मल रहा हूँ। बावल होई सोशो लोरू, बावरों की तरह मैं अपने प्रभु परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर समय मेरे हाथ से निकल चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तय सह मन में किया रोष, मुझ अवगन सहनाई दोष। शायद परमात्मा मुझसे नाराज है मेरी किसी गलती की वजह से, पर मैं इसका दोष परमात्मा को नहीं दूंगा, दोष अपने कर्मों को दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शायद परमात्मा मुझसे नाराज है मेरे कर्मों की वजह से, ये दोष मैं परमात्मा को नहीं दूंगा कि मेरे हाथ से समय निकल गया, मेरी अपनी मूर्खता से निकला है। मुझ अवगन सह नाही दोष, मैं परमात्मा को दोष नहीं देता, अवगुण मुझ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच्चाई भी ये है, अवगुण मुझ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तय साहिब की मैं सार न जानी, चोबन खोए पाछे पछतानी। मैंने उसकी सार नहीं जानी, उसकी वड्याई नहीं जानी, उसकी कीमत नहीं जानी परमात्मा की। अब जोबन चला गया है, अब पछता रही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जवानी मेरी चली गई। काली कोयल तो कितगुण काली। फरीद जी कोयल की आवाज़ सुनते हैं और पूछते, मैं तो बिरहा की अगन में जल के लकड़ी की जैसे काला हो गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर काला हो गया लकड़ी की तरह, बिरहा की अगन में जलकर। तू क्यों काली हो गई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कोयल से पूछते हैं और कोयल जवाब देती है, अपने प्रियतम कह हो बिरह जाली। जिस प्रकार फरीद तू काला हो गया, तेरा शरीर काला हो गया है, उसकी याद में जलकर मैं भी उसकी याद में जलकर काली हो गई हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फरीद जी के मन की अवस्था बताई है कि कोयल से बातें कर रहे हैं और कोयल जवाब दे रही है। अवस्था अपने मन की है, बात कोयल की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काली कोयल तो कित गुण काली। बाबा नंद सिंह जी धारणा प्रवाह करते थे, काली हो गई नाम तो बिना, मैंने पै गया बिछोड़ा सच्चे रब दा। काली हो गई नाम तो बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर चाहे काला हो ना हो, बिना नाम के मन काला हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म की इस मन को मन लगी, काला हुआ सुहाग
सुहा के जैसे काला हो गया है। सुहा हाथ में लग जाए ना, सुहा तो जहाँ भी हाथ लगाओ काला हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना मन काला हो गया हमारा, काली हो गई। आइए धारने में 2 मिनट पढ़ लेते हैं। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। काली हो गई जी 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 नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा, काली हो गई नाम तो बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर है विहून कत है सुख पाए, जहाँ कृपालता प्रभु मिलाए। एक सुहागन अपने पति के बिना कैसे सुखी रह सकती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सुहागन कहा है अपने आप को, और पति कहा है परमात्मा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ होए कृपालता प्रभु मिलाए। अगर वो कृपा करे तो खुद ही मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्दण खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। मेरी हालत ऐसी है फरीद जी कह रही जैसे कुआं हो, उजाड़ जंगल में अंधेरे में कुआं हो, और उस कुएं में मैं अकेली बैठी हूँ एक औरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मेरा कोई साथी है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई मददगार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसी हालत होगी उसकी? वैसी हालत मेरे मन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आगे फरियाद की है, क्या फरियाद की है? कर कृपा प्रभु साध संग मेली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे परमात्मा मुझ पे तरस कर मुझे सत्संगत मिला दे। क्यों सत्संगत चाहिए? जा फिर देखा था मेरा अल्लो बेली। क्योंकि सत्संगत में बैठ के मुझे ऐसे महसूस होता है कि गुरु नानक मेरे साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाली सत्संग में नहीं, साथ संगत जी जो रोज नित्यनेम से सत्संग निभाते हैं ना, उनसे पूछ कर देखो, फील होता है कि गुरु नानक साथ में है। महसूस होता है कोई है साथ में शक्ति, वो रक्षा करेगा। एक्चुअली में होता साथ में ही है, हमें फील नहीं होता है, फील होने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सिमरन साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाट हमारी खरी उडीनी, खनियो तिखो बहुत पेनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समाल सवेरा। वाट कहते हैं रास्ते को, मराठी अक्षर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तुमची वाट वक्तो आई कहते हैं ना, मैं तेरा रास्ता देख रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाट हमारी खरी उडीनी, मेरा रास्ता बहुत दूर का है। खनियो तिखी, इतना तीखा रास्ता है, बहुत पैनी, जैसे खंडे की धार पे चलना, बड़ा पतला बारीक रास्ता है। ये कौन सा रास्ते की बात की है? प्रभु को मिलने के रास्ते की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस रास्ते को कठिन क्यों कहा है? क्योंकि जो इस रास्ते पे चलते हैं ना, मन को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ये 2 काम नहीं हो सकते, 4 काम नहीं हो सकते कि सब कुछ करते जाओ प्रभु मिल जाएगा। सुरत एक जगह टिकानी पड़ती, बारीक करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचपन में हम करते थे, आज भी पता नहीं बच्चे करते कि नहीं, क्योंकि मोबाइल आगे ध्यान नहीं किसी का। हम एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स ग्लास लेके आते थे और सूरज की रोशनी को ऐसे पकड़ते थे, ग्लास को कागज रखते थे, उस पर आग लगा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये क्या होता है? सूरज की रोशनी फैली हुई है, जब वो ग्लास पे पड़ती है तो एक बारीक एक किरण बन जाती है। जब किसी चीज़ पे रखते तो वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें ताकत इतनी बढ़ जाती है। हमारी सोच सुरत फैली हुई है, ये ख्याल वो ख्याल, ये ख्याल, गंदे ख्याल, बुरे ख्याल, दुनिया भर के ख्याल।
उसे संकोच कर एक सेंटर पे लाना होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उस सुरती की ताकत इतनी बढ़ जाती है तब जाकर कुछ हासिल होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विचारों से निर्विचार होना पड़ता है, ये वही तो पढ़ाई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप जप कर ये अवस्था हासिल होती है, ये अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु फिर आप जब एक चीज़ में ध्यान लगाओगे तो उसमें डूबे होगे। ये डूबना जरूरी होता है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई बड़ा आदमी जो बड़ा काम करता है, उनमें ये खासियत होती है कि वो कंसंट्रेट कर पाते हैं एक पॉइंट पे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बात हो रही है उसके 1000 गुना ऊपर की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो दुनियावी खोज है, ये प्रभु को खोजना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए इसे कहा है खनी हो तकी बहुत पैनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, मेरा मार्ग वो है तो क्या कर। तो शेख फरीद जी ज्ञान दे रहे, पंथ संभाल सवेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर सवेरे के कई भाव निकलते हैं। एक तो है अमृत वेला संभाल, और अगर गहरा भाव देखें यहाँ सवेर कहा है जल्दी को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जवानी हाथ से निकलने से पहले एक बात ध्यान से समझना, समाधि लगाना, ज़्यादा नाम जपना, एक कुछ करना, कुछ करने की चाहत करना, ये जवानी में बड़ी आसानी से हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त आप बिना बाथरूम जाए 16-16, 18-18 घंटे भी बैठ सकते हो। एक बार उम्र हो गई, अब चाहकर भी नहीं बैठ सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समाधि लगा सकते हो, घुटने नहीं दुखेंगे। एक उम्र हो जाती है, अब चाहकर भी नहीं समाधि लगा सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंथ संभाल सवेरा। सवेरा क्यों कहा है? किसी को कहते हैं ना जल्दी आना, जल्दी का मतलब क्या है? सुबह जल्दी आना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जल्दी समय संभाल ले। जिनकी उम्र बीत गई है वो भी मन ना हारे, क्योंकि देर फिर वो तो गुरु अमरदास जी का जीवन देखे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर एक सच्चाई है ये। दास महापुरुषों के साथ रहा है साथ संगत जी, 32-32 घंटे एक चौकड़ी पर बिठा देते थे। नहीं उठना है, बाथरूम में नहीं जाना है, पानी भी नहीं पीना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो करवा लेते थे, हो जाता था, एक समय था। अब नहीं हो पाता, चाह कर भी नहीं हो पाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समय है बंदगी का, पाने का, बाकी जैसे मर्जी उसकी। फरीद जी कह रहे हैं समय संभाल ले, हाथ से निकल रहे तेरे, पंथ संभाल सवेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में फरीद जी को बैराग उत्पन्न हो गया है, ये बैराग की अवस्था है। और फरीद जी तो यहाँ तक कहते हैं अगर तेरे भीतर बैराग उत्पन्न नहीं होता ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, तो समझ ले तू मुर्दा है, तू जीवित नहीं है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा, तू सुल्तान भक्ति है बिरहा। सुल्तान सारी भक्तियों की प्रेमा भक्ति जब शामिल हो जाती है, जब बैराग पैदा हो जाता है तो सुल्तान भक्ति होती है, फिर बिरहा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजाए। जिसके हृदय में, जिस शरीर में बिरहा नहीं उत्पन्न हुआ, प्रभु के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, बिछोड़ा नहीं पैदा हुआ, आंखों में से आंसू नहीं गिरा कि प्रभु मैं तुझसे बिछड़ा हूँ, कहते वो शमशान घाट है और कुछ नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी आत्मा उसमें दफन है, शमशान घाट है। शरीर तेरा दिख रहा है पर अंदर शमशान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर जीवित होता तो तेरे अंदर बिछोड़े का दर्द होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब उस हिसाब से देखा जाए तो हम सब मरे पड़े हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की नजरों में बिरहा, दर्शनों की प्यास, ये वो अवस्था है साथ संगत जी। इस दर्द में इतना आनंद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जलना तो सबने है, जल तो हर कोई रहा है। कोई तृष्णा की आग में हम जल रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वासना की आग में जल रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार की आग में जल रहे हैं। कोई विरला है जो बिरहा की आग में जले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा की आग में तो पाप बनते हैं और बिरहा की आग में पाप नष्ट हो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं रोज 1-2 दिन छोड़कर ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ, रोज रोज लगातार नहीं ले रहा। मुझे पता है समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी अवस्था नहीं उसकी बात समझ में आएगी कैसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो लगातार अगर ऐसे टॉपिक ले ले संगत घर ही बैठ जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 2 पंक्तियां पढ़ लें। काली कोयल को कित गुण का, कित
गुणकारी काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के अबीर है जाने। काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना हमने 3-4 दिन पहले ली थी। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर साहब की पहाड़ियों में पीर बुड्ढन शाह को मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहा उसे? अब रसमान, बिरहा का रसमान, बैराग का रसमान, बिरहा का रस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्होंने ये अवस्था हासिल की है वो बताते हैं कि ऐसा दर्द होता है सीने में कि कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ चाहते नहीं होती, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना सोने का मन करता है। बस एक चाह होती कि बस परमात्मा अभी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ नहीं चाहिए। मन उदास रहता है, आंखों में से आंसू गिरते रहते हैं, आंखें नम रहती हैं, आदमी अपने को छिपाता ही रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। और इस अवस्था में इतना रस है, कहते हैं कि दुनिया के सारे रस इसके सामने फीके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जहाँ को रस हर रस है आयो, सो अन्य रस नाही लपटायो। ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम महारस पियो, बिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये महारस है। पीर बुड्ढन शाह को गुरु नानक पातशाह ने जब दर्शन दिए तो उसने कहा मैं आप जा, गुरु नानक पातशाह कहने लगे मैं जा रहा हूँ, हमें जाना है। पीर बुड्ढन शाह ने चरण पकड़ लिए कि पातशाह सारा एक जन्म गवा के बुढ़ेपे में आप मिले हो और मैं जाने नहीं दूंगा, और मैंने आपकी कोई सेवा भी नहीं की है, मेरी कुछ बकरियाँ मैं दूध निकाल के लाता हूँ, आप वो पी लो। तब गुरु नानक पातशाह ने क्या कहा था? हमने तेरी आयु बढ़ा दी है, अब तो आनंद ले बिरहा के रस का। हमको अभी जाना है, हमने कहीं और जाना है, वहाँ दूध छकेंगे, तेरे पास हम 6वें जामे में आके छपेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 6वां जामा, 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी जब उस रूप में आएंगे हम, तब तेरे पास आके दूध छकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूध पियेंगे, तब तक तो समाधि में रस ले। अब सोचो कितना लंबा, कितना लंबा। गुरु नानक पातशाह शरीर त्याग गए, गुरु अंगद देव जी शरीर त्याग गए, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, अब समय है गुरु हरगोबिंद साहब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी आयु भोग चुके हैं, उसी पहाड़ी पर बैठे हैं, उसी पत्थर पर बैठे हैं, समाधि में लीन, बिरहा के आंखों में आंसू गिर रहे हैं कि कब दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। इतनी उम्र हो चुकी है, इतिहास में लिखा है कि भरवट्टे होते ना आंखों के ऊपर जो ये होते हैं आईलिड्स, उसे भरवट्टे कहते हैं। वो यहाँ तक नाक के नीचे तक आ चुके हैं, क्योंकि चमड़ी बुढ़ेपे में लटक जाती है ना, तो भरवट्टे यहाँ तक नीचे लटके हुए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कर क्या रहे हैं? इंतजार किसका? गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है पीर बुड्ढन शाह जी। बाबा नंद सिंह जी कहते थे सत्संगत में बैठ के, बड़ी ध्यान से सुनना,
सत्संगत में बैठ के किसी को मन में एहसास हो जाए कि मैं तुझसे बिछड़ा हुआ हूँ, मुझे दर्शन कब होंगे, एक सोच ही आ जाए मन में, एक विचार ही आ जाए, थोड़ा सा बैराग जाग जाए, पूरा भी नहीं, और अब आंखों से एक बैराग का आंसू गिर जाए, एक, कहते तो उसके सारे जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं एक उस बिरहा के एक आंसू से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें रोना कब आता है? जब हमारे दुकान में नुकसान हो जाए, मकान में नुकसान हो जाए, हमारा कोई अपना मर जाए, छोड़ जाए। महापुरुषों भक्तों को रोना तब आता है जब नित्य नेम छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब अमृत वेला छूट जाए, उनकी आंखों में से आंसू गिरते हैं बैराग के, पश्चाताप के, कि मैं तुझसे बिछड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फर्क कितना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पीर बुड्ढन शाह बैठे हैं समाधि में, पर इंतजार कर रहे हैं कि मेरे गुरु नानक आएंगे। क्या के गए थे 6वें जामे में आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पे सवार हुए, कुछ साथियों के साथ में लिया, कहने लगे चलो कहीं जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो समा आ गया जिसके बारे में गुरु नानक पातशाह क्या के गए थे। यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पे सवार होकर चल पड़े। वहाँ पर वो पीर बुड्ढन शाह की मन की अवस्था उसे गा लेते हैं। संत सुजान सिंह जी ये गाया करते थे। गुरु नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। गुरु नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। गुरु नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। मेरा मन लोच रहा, मेरा मन लोच रहा। मेरा मन लोच रहा, मेरा मन लोच रहा। गुरु नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। नानक दर्शन देना, मेरा मन लोच रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय आ गया, वो गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े पे सवार होके चल पड़े। पहुंचे वहाँ पे, दूर घोड़ा खड़ा करके गुरु हरगोबिंद साहब जी पैदल जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी बात है सत्संग जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर जन्म साखी पढ़ेंगे या इतिहास पढ़ेंगे तो एक पॉइंट बार बार आता है। मेरे गुरु नानक पातशाह जब कहीं जाना होता था ना, बहुत सारी जगह पे, तो भाई बालाजी भाई मर्दानी से कहते थे आंखें बंद करो और सतनाम बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम कहते थे और कहीं प्रकट हो जाते थे, किसी पहाड़ी पे जहाँ भी जाना होता था प्रकट हो जाते थे। पर कभी कभी पैदल चल के जाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ते थे। तो भाई मर्दानी जी कहते पातशाह इतना दुर्गम रास्ता है, क्यों चल रहे हैं हम, वैसे ही ले जाओ ना, पलक झपकते ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये इसलिए पैदल जा रहे हैं कि पुण्य मिलेगा, गुरु नानक पातशाह को पुण्य मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ज्ञान देने के लिए जब जब किसी भगत के पास गए, किसी ऐसे के पास गए जिसकी नेक कमाई है, दशा नौ की किर्त है, चाहे गरीब है अत का, पर उसकी मेहनत की कमाई करके खाता है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, जहाँ जहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा कमाई वाला भगत है या यहाँ पर कोई ईमानदार व्यक्ति है, वहाँ पर गुरु नानक पातशाह चल कर गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। और ज़्यादातर के इतिहास में जो घटनाएं आती है वहाँ पे गए चल के जहाँ पर ईमानदार व्यक्ति होता था। जो बिजनेस हर कोई करता है, हम ईमानदार नहीं हैं, हम सबको पता है। कुछ ना कुछ हेरा फेरी हमारी होती है, करनी, और कहते हैं करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के इसलिए तो सबसे पहले नाम के ऊपर रखा है धर्म की किरत, नाम से भी ऊपर रखा है। बाद में कहा है नाम जपो, पहले सच्चाई से धन कमाओ, 10 9 की मेहनत करके। और सच्चाई किसे कहते हैं?
बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, 1 रुपया दिया है सामने वाले ने, 1.25 रुपये का काम करना, इसे कहते हैं धर्म के कीर्त। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते हैं, 1 रुपया लेके 4 आने का काम करते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 1 रुपया लेके 1 रुपये का काम करना, कहते हैं इसे कीर्त है, धर्म की नहीं। पर फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और 1 रुपया लेके 12 आने का काम करना बेईमानी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म की कीर्त, मेहनत करना, कोई हेरा फेरी नहीं, ना कम तोलना, ना कोई मिलावट करनी, ना कम माप करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने जब 13-13 जब तोल के दिया था, तो 13-13 का सिद्धांत क्या था, पलड़ा जब तक नीचे झुक नहीं जाता था ना, तब तक तोलते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि सब कुछ तेरा। और जितनी बार भी हिसाब लगाया पैसे बड़े ही, तो उनसे पूछा गया कि आप देते ज़्यादा हो, हिसाब करते हो तो नफ़े में होते हो, नुकसान होता नहीं, ऐसे कैसे। गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, जो ज़्यादा तोल के देगा किसी को, नुकसान निरंकार होने देगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारा मन नहीं मानता, कैसे ऐसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही मन मनाने तो यहाँ बैठे हैं। गुरु मेहर करे एक दिन मान जाए, और माना है कईयों का, और जिन्होंने माना है उस पर चले हैं। 1 की 4 फैक्ट्रियाँ, 1 की 4 शोरूम अपनी आंखों से दास ने देखे होते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल होता है ये करना, पर जो कर लेता है बात तो उसकी बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे को मन जाने मन को, जो मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात कहाँ चल रही थी, पीर बुड्ढन शाह जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी चल के आ रहे हैं, पहाड़ी पे चल रहे हैं, पास में आके खड़े हो गए, ये समाधि में लेने, आंखों में आंसू है। कहने लगे पीर जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हरगोबिंद साहब जी ने आवाज़ दी, पीर जी। ऐसी खिंचवी आवाज़ सुनकर कहते हैं, इतिहास में लिखा है कि पीर बुड्ढन शाह ने अपने हाथों से अपने भरवट्टे ऊपर उठाए देखने के लिए भी कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हाथों से वो पलके ऊपर उठाई और देखा सामने नूरानी चेहरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहचान गए उसी पल के समय आ गया, उठ खड़े हुए चरणों में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कंधों से उठाया, नहीं पीर जी, आपकी तप बहुत ज़्यादा है, आपकी तपस्या बहुत है। पीर जी कहने लगे, ये बातें करके मुझे धोखा मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब 6वें गुरु नानक हो, आपने मुझसे वादा किया था मैं आऊँगा और दूध चुकूँगा, अब बैठिए मैं आपको दूध पिलाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी वहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतनी वृद्ध अवस्था में भी बकरों से दूध निकाला और लाकर कटोरा गुरु हरगोबिंद साहब जी को दिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वो दूध का कटोरा पिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक अनोखी घटना घटी जो बहुत ज्ञान देती है। दास हमेशा कहता है ना, कुर्सी एक है, जगह एक की है, 2 की नहीं, 2 को नहीं बिठाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, पर यहाँ पर हृदय जगह एक की है। वो कहने लगा, ठीक है, आप गुरु हरगोबिंद साहब जी के रूप में आए हो, 6वें जामे में आपके दर्शन करके मैं धन हो गया, पर मुझे तो वही गुरु नानक चाहिए जो मुझे कह के गया था कि मैं दूध पीऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए, मैंने उन्हें अपने हृदय में बिठाया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, प्रेम होता ही एक से है, 2 से 10 से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु नानक के रूप में पीर बुड्ढन शाह को दर्शन दिए। पीर बुड्ढन शाह ने माथा चरणों पर रख दिया, दर्शन किए, तृप्त हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते, कोई इच्छा है तो बता दो, समय हो गया है आपका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पीर बुड्ढन शाह ने कहा, बस ये पॉइंट ना बहुत सारी साखियों में आता है, जिसने भी दर्शन किए ना बुजुर्गी हालत में, अंत समय में तो एक ही चीज़ मांगी कि जिन आंखों ने अब तेरे दर्शन कर लिए, अब ये कुछ और ना देखे, प्राण निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं कुछ और नहीं देखना चाहता, बस आपके दर्शन आखिरी दर्शन हो, इसके बाद कोई और ना दिखे। और पीर बुड्ढन शाह ने अपने श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो बैराग की अवस्था
कितने जन्मों तक इंतज़ार किया। उसने गुरु नानक पातशाह से ये नहीं कहा कि नहीं नहीं इतना देर कौन इंतज़ार करेगा, यार जी बोलिए धन गुरु नानक, आपके दर्शन हो गए बस, इतने साल में बैठा रहो यहाँ पे। नहीं, जिसे प्रेम जाग जाए ना, प्रेम, संतोखा रखी 4 युगों तक धरती में दबा रहा। वो घटना कितनी बर्दाश्त ने सुनाई है। गुरुद्वारा संतोख सर साहब हरमंदर साहब के पास में जगह है। आप ब्राह्मण के ढाबे में जाते हो खाना खाने, उसके पास में लेफ्ट साइड में जब जाते हो, लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा संतोख सर साहब। यहाँ पर वो ऋषि निकला था 4 युगों से। सतयुग में उसने डिमांड की थी कि मुझे गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने, जो उसने सुना ऋषि मुनि के मुख से कि कल युग में खुद निरंकार धरती पर आएंगे गुरु नानक का रूप लेके, कहने का मुझे दर्शन करने हैं। तो राजा जनक ने फिर कहा अगर दर्शन करने हैं तो एक मठ में तुझे बंद कर लेते, श्वास ऊपर चढ़ा ले, धरती में दबा देते हैं। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज तुझे आके दर्शन देंगे कल युग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही हुआ, 4 युगों तक बैठा रहा कि गुरु नानक के दर्शन करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक प्यास जागी, एक प्यास जागी दर्शनों की। गुरु मेहर करे आपको फीलिंग आ जाए हम सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी बातें हम सुनते हैं कि होता क्या है, इसे प्राप्त करने के लिए कुछ तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा साथ में। ऐसे ये मजाक नहीं है कि पूरा पूरा दिन मोबाइल में फालतू चीज़ें भी देख ली, फालतू बातें भी कर ली और फिर बैराग की और दर्शनों की मांग करें। ये तो मजाक है भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल करना पड़ता है, नाम जपना पड़ता है, नित्यनेम संभालना पड़ता है। सबसे पहला मूल है सिद्धांत है नित्यनेम। जो नित्य नहीं वो नित्यनेम नहीं, और जब नित्यनेम ही नहीं है बात बनने की तो बात ही भूल जाओ। सबसे पहले अगर नित्यनेम छूटता कभी बनता, कभी छूटता कभी बनता, तो एक एम बना लो लाइफ का कि मर जाऊंगा नित्यनेम नहीं छोड़ूंगा। ये पहले धारण करना पड़ता है अपने मन में कि मौत आ जाए वो मंजूर है, नित्यनेम नहीं छोड़ूंगा। अगर समय 4 बजे का है, 3 बजे का है, 2 बजे का, तो मैं 5 मिनट पहले बैठ जाऊंगा। ये अपने मन से अगर आप प्रॉमिस कर सकते हो तो फिर आगे के खेल सारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस निरंकार ने सब कुछ दिया, एक शुक्राना इतना भी नहीं कर सकते क्या? इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो समझ लो कि टाइम पास ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको सत्संग का फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ अगर नित्यनेम पक्का नहीं हुआ तो कहीं पे कुछ गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे ये अवस्था बन जाए। अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के हो बिर है जानी जानी। काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। काली कोयल तो चित गुण काली, चित गुण काली। काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। जो सिर साई नानिवे सो सिर दीजे डार। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जा। हर से बोलिए धन गुरु। गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन है कितने करड़े हैं कि जिस हृदय में प्रेम नहीं जागा परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु नानक के प्रति, बिरहा नहीं जागा, बिछोड़े का दर्द नहीं है जिस सीने में, वो शरीर को जला दे, सिर काट के फेंक दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह रहे तेरा जन्म ही क्यों हुआ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई प्राप्त तो मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की जन्म मिला उसे मिलने के लिए, और हमें प्यास तक नहीं है, छोड़े का दर्द तक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मुर्दा शरीर ही है ना, फिर मिला जिस कार्य के लिए
उसे छोड़ के सारे कार्य कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी जा रहे हैं, पहाड़ियों में से गुजर रहे हैं, नदी पास में बह रही है। गाड़ी वाले से कहा गाड़ी रोको, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बाबा ईश्वर सिंह जी नीचे उतरे, नदी के किनारे में जाके खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी के किनारे में जाके खड़े होकर कहने लगे वाह वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार पास में कहने महापुरुषों कुछ हमें भी ज्ञान दे दो। अब क्या किस बात के लिए वाह कह रहे हो नदी को, बहुत सुंदर है इसके लिए। कहने लगे नहीं, नदी का गुण देख, ये गुण अगर जब तक इंसान में नहीं होगा वो प्रभु को नहीं पा सकेगा। तो कहने लगे कौन सा गुण, नदी में कौन सा गुण है। कहने लगे देखो कहाँ से चलना शुरू किया इसने, पहाड़ों की चोटी से कहाँ से चलना शुरू किया, दिन रात चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आराम नहीं, मिलना कहाँ है, समुद्र में। समुद्र में मिलने के लिए कैसे तड़प रही है, रास्ते में रुकावट आ रही है, वहां से पार होकर उछल कर पार हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टोआ है, टिब्बा है, पत्थर है, चट्टान है, काट के आगे बढ़ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ना दिन को आराम है ना रात को, चल रही है चल रही है। ऐसा नहीं कि रात को रुक रही है फिर चल रही है, वो चल ही रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर केसो केसो कुकी है, ना सोई है आसार, रात दिवस के कुकने कभू के सुने पुकार। कबीर जी कहते मैं दिन रात पुकार रहा हूँ, दिन रात। ये कभी तो सुन लेगा, ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और वो सुन ले, वो आ जाए तब मैं सोया हुआ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दृष्टांत दिया है, हमें समझाया है कि दर्शनों की प्यास कैसी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शनों की प्यास इतनी कमाल की चीज़ है साथ। एक होता है सत्संग जी सैलरी, एक होती है बख्शिश। सैलरी मिल जाती है, बख्शिश या तो तरस करता है मालिक, या तो उसे खुशी होती है तो देता है बख्शिश। हम होटल में जाते टिप देते हैं ना, बख्शिश देते हैं। या तो हमें गरीब आदमी पे तरस आया था, या तो उसकी सर्विस देख के खुश हो जाता है मन और उसे टिप देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शिश, उसे बख्शिश कहते हैं। वेतन सैलरी की एक कीमत है, बख्शिश की कोई कीमत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे हमारे पे इतनी बख्शिशें की हैं उसने, इतनी बख्शिशें की, हम ना शुक्र हैं। पहली बख्शिश, ये बख्शिश है, ये किसी कीमत में नहीं मिलती, ये जो मनुष्य शरीर मिला है। कहते मैं किसी जानवर के रूप में भटक रहा था, किसी संत को मुझ पे तरस आ गया, मुझे नज़र भर के देखा, मेरे लिए उसके हृदय से अरदास निकल गई, उसकी बख्शीश हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मुझे मनुष्य देही मिल गई, ये उसकी बख्शीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मनुष्य देह की कोई कीमत नहीं है। एक हाथ, कोई कहे ना कि 10 करोड़ ले ले, एक हाथ काट के दे दे, कोई देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेशकीमती है, ये उसकी बख्शीश है, हमने खरीदा नहीं है, बनाया नहीं है इसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म देने के बाद उसने फिर हमें ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ पे नाम जपा जाता है, तो हम यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं और भी दे सकता था, ये उसकी दूसरा रहम, उसका कर्म, उसकी बख्शीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसने सत्संगत बख्श दी, सत्संगत, सच की संगत, जो उसकी तीसरी बख्शीश। फिर उसने पूर्ण साधु की संगत बख्श दी, संतों की, बाबा आनंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट है सोचने का। महापुरुष कहने लगे हमारे पर इतनी बख्शीशें किया उसने, 1 2 3 4 गिनते जाओ, और ये सारी बख्शीशें बेशकीमती, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर बाबा नंद सिंह जी ना मिले होते तो हम कहाँ बैठे होते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह। धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह। पूर्ण संत भी मिल गए, सत्संगत भी मिल गई, अमृत वेला भी मिल गया, बख्शीश पे बख्शीश, बख्शीश पे बख्शीश। अब अगर दर्शनों की प्यास ना जागी तो ये सारी जितनी भी बख्शीश है सारी हमने व्यर्थ गवा ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जरा विचार करके देखो, सारा ज्ञान है, अमृत वेला है, नित्यनेम है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ ज्ञान है, साधु की संगत है, गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसे गुरु हैं। फिर भी अगर हम गुरु को ना पा सके तो कौन से जन्म में कौन सी फैसिलिटी और सोच रहे हो कि आगे जाके मिल जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बख्शिशें इस वक्त मिली है, क्या पता अगले जन्म में ना मिले? सबको थोड़ा मिली है,
करोड़ों लोग सोए पड़े हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता ही नहीं होता नाम क्या है, वहाँ भी तो जन्म ले सकते थे। इतने सारे बख्शिशें होने के बाद अगर हम थोड़ी भी घालना ये ना घालें कि आगे बढ़ना है, तो हमारे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी को कहते हैं हाथ मरोड़ो में, हाथ मलते रह जाएंगे हम। एक बार ये मौका हाथ से निकल गया ना, तो जो फरीद जी की हालत है वही हमारी हो जाएगी। उनकी तो हमको डराने के लिए हमें कहा है, उनकी हालत वैसे थोड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत तो वो हो जाएगी, हाथ में आया हुआ हीरा हम गवा लेंगे। सारा ज्ञान सारी समझ होते हुए भी अब आगे और नहीं बढ़ रहे, एक कदम नहीं उठा रहे आगे मिलने के लिए, तो समझ लो कि बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ा नुकसान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तप तप लो ले हाथ में रो, बावल हो सो सो लो। तैसे मन में किया रोष मुझ अवगन शहन आई दोषी। हमारे अवगुण होंगे, उसका कोई दोष नहीं, उसने सारी बख्शिशें कर दी, इन बख्शिशों को मिला के उसे पा सकते हैं, पर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब उठा नहीं जाता, भाई साहब पता नहीं क्या नहीं उठा जाता। कहते कृपा करो उठ जाए। अरे दुकान पे जाने के लिए कहते हो क्या कृपा करो दुकान पे जाऊँ? कहते हो क्या काम पे जाने कृपा करो, सीधा पहुंच जाते हो क्योंकि सैलरी मिलनी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कृपा करो तो उठेंगे, वो कृपा करेगा तो उठेंगे। दुकान पे वो कृपा करता है तो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बीमार भी होना तो गोली खा के जाते हैं, भाई ग्राहक नाराज हो जाएंगे, ग्राहक टूट जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम इतनी वैल्यू तो दे दो गुरु को, देनी तो इससे करोड़ गुना ऊपर है। इतनी तो दे दो जितनी काम को देते हो, धन को देते हो, कुछ तो बात बन जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस नित ने मत छोड़ा करो, ये आके मत कहा करो कि नहीं उठा जाता, कृपा करो उठ जाए। ये बहुत बहुत ही छोटी बात है, नहीं कहा करो। कृपा तो बरस रही है, ले लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 रात को थोड़ा कम खाओ, थोड़ा जल्दी सो जाओ, थोड़ा काम कम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हमें लगता है हम अपनी मेहनत से खाते हैं, पहले भी समझा दिया, मेहनत तो मजदूर पर रोड भी करते हैं, गुरु की कृपा से खाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत से हल चलाया जा सकता है, मेहनत से फसल नहीं पैदा की जा सकती। मेहनत से डॉक्टर इलाज कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा इलाज करके कहता है दुआ करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत करो, गुरु नानक पातशाह का हुक्म है, पर जिस मेहनत से, जिसका काम ज़्यादा करने से नित्यनेम छूट जाए। कहते बहुत थकावट हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम कर ले भाई, अमृत वेला संभाले। जन्म इसलिए हुआ है, जन्म तेरे को 16 घंटे 20 घंटे दुकान पे बैठने के लिए नहीं है। 8 घंटे काम कर, सो खा, ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जप और अमृत वेला संभाल ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन धन गुरु नानक। धन। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। बैठे, थोड़ी देर और एक साखी लेनी थी, अगर सबका मन हो तो हाथ खड़े कर दे। सत श्री अकाल। अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के अबीर है जानी जानी। काली कोयल तो हित गुण काली, हित गुण काली। काली कोयल को चित गुण काली, चित गुण काली। काली कोयल तो हित गुण काली, हित गुण काली। भाई साहब, भाई गुरदास जी बिरहा के दर्द के बारे में बता रहे कि कैसा दर्द होता है बिरहा का, क्योंकि हमें वो अवस्था तो मिली नहीं, पर ज्ञान लेके थोड़ा आनंद ले लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक कि बिरहा के दर्द कैसा है, श्रवण कीजिए। अगन जरत जल बूढ़त सर्प ग्रस, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग में जल रहा हो इंसान, पानी में डूब रहा हो, एक साथ सब हो रहा हो, सांप डस रहे हो, शस्त्रों से घाव किया जाए, एक एक रोम करके काटा जा रहा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी दर्द किसी को हो रही हो, एक साथ आग में जल रहा हो, पानी में डूब रहा हो, सांप डस रहे हो, शस्त्रों से उसे काटा जा रहा हो बारीक बारीक। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, गृखम औ शीत बरख माहिन से प्रात है। दुनिया भर के जितने दुख है, टेंशन है, सब उसके दिमाग में हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपदाओं से घिरा हुआ हो, दीन हो, अत का गरीब हो, खाने को रोटी ना हो, ये दुख भी उसके साथ में हो। ठंड का समय हो, कपड़े पे बदन पे कपड़ा ना हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्फों में हो, ये सारे दर्द इकट्ठे कर लो। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि विरह का दर्द कितना होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कमाल का पहलू है, जरा समझ लेना इसे। गौ दिव्य बद्ध विश्वास, बंद बंद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख बस गात है। गौ की हत्या का दुख हो, दुनिया भर के पाप उसने किए हो, उसका बोझ हो उसके ऊपर, तृष्णा उसके मिटे ही ना, लालच से भरा हो, सारे जितने भी दुख हैं उसके उसे भोग रहा हो, दुनिया की जितनी बीमारियां वो उसे लगी, ये सारे दुख अगर एक इंसान को, उसका दर्द कितना होगा सोच के देखो। आत्महत्या ही कर लेगा वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर को खत्म कर लेगा अपने। पर यहाँ पे भाई गुरदास जी के कहते हैं, कमाल है। अनेक प्रकार जोर सकल संसार सोद, पिय के बिछो पल एक ना पुजात है। कहते हैं सारे दर्द एक तरफ रख लो और उसे मिलने की तड़प जिसे जन पैदा हो जाए, बिरह की प्यास पैदा हो जाए, दर्द पैदा हो जाए, उसके सीने का वो दर्द एक सेकंड का एक तरफ रख लो, एक बराबर है, वो उस तक नहीं पूछ सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना दर्द होता है कि सहा नहीं जाता, कि बस अभी मिल जा, इतना दर्द होता है। पर कहते हैं इस दर्द में आनंद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कमाल का दर्द है कि इसमें ऐसा रस है कि मन करता है कि दर्द भी खत्म ना हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारे फकीर ने, एक मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे ये शायरी मिली किसी फकीर की लिखी हुई, तो मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पर, मुझे बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर जो बाबा नंद सिंह जी कहते थे और जो भाई गुरदास जी कह रहे हैं पूरा फिट बैठते हैं यहाँ पर। ये शायरी है किसी फकीर की, नाम नहीं मुझे पता, सर्वन कीजिए। या रब गवाए वसल न हरगिज कबूल हो, या रब गवाए वसल न हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत ही निकल गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहता है फकीर कि मैं रोज तुझसे दुआ मांगता हूँ, या खुदा कि मुझे तेरे दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए। मैं रोज दुआ मांगता हूँ तुझसे, पर मेरी एक और दुआ है कि मेरी ये दुआ कभी कबूल मत करना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, एक तो तू कहता है कि मैं दुआ मांगता हूँ कि तेरे दीदार हो जाए, और फिर आज तू कह रहा है कि कभी दीदार दे मत देना, तो मांगता क्यों है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आगे फिर क्या कहते हैं, क्या कह रहे, फिर से बारीकी से सुनो। या रब गवाए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत ही निकल गई। हे परमात्मा, मैं तेरे दीदारों के दर्शनों की मांग करता हूँ। बैराग की अवस्था वो है कि मुझे दर्शन हो जाए, पर मेरी अरदास कबूल मत करना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं? क्योंकि अगर तेरे दर्शन हो गए तो हो सकता है फिर ये प्रेम जो दिल में भरा पड़े कहीं खाली ना हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बिरहा के प्रेम में इतना रस है, इतना दर्द है, पर इतना रस है कि अगर ये मेरे निकल गया तो मैं तो मर जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए मेरे पास ना कई लोग आते हैं, गुरु नानक की कृपा से आपकी संगत में ऐसे हैं, क्योंकि संगत विच संगत हर प्रभ से जो ऐसी कमाई वाले बैठे हैं जिन्हें बिरहा की आग पकड़ चुकी है, कहते हैं दर्शन हो जाए। मैं कहता हूँ
ज्ञान ले लो, मांगो दर्शन ठीक है, पर रस पियो, ये समय है। आनंद ले लो, तरसोगे तड़पोगे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि ठीक है गुरु नानक के दर्शन प्रत्यक्ष होते हैं, आनंद है, पर वो दर्द का जो आनंद था ना वो अलग ही था। यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। कमाल ही है ना, ये बातें हम सुनकर कोशिश कर सकते हैं समझने की, समझ में आएंगी कि नहीं ये गुरु ही चाहेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो ऐसे हो गया, भूख लगी है खाना दो, पर खाऊंगा नहीं, कोई भूख पेट भर गया तो फिर भूख नहीं रहेगी। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यास लगी है पानी दो, अगर पी लिया तो प्यास बुझ जाएगी, फिर आनंद नहीं आएगा। इस प्यास में आनंद है, उस प्यास में दुख है, इस प्यास में आनंद है, वो भी ऐसा आनंद कि पूछो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या, कहिए गूंगे को गुड़ खिलाओ, पूछो कैसा है, वो तो नाचेगा, बता नहीं सकता मीठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे बोलेगा कैसा है, ये वो है रस है, जिसे आ जाए वो चुप कर जाता है, वो फिर बोलता नहीं, वो नहीं बोलता, बोलता वो है जिसे नहीं आए। जो कहते हैं ना हमें बड़ा रस आ रहा है, वो अंदर से खाली है, खाली बर्तन शोर करते हैं, भरा हुआ नहीं शोर करता। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़्यादा तो दिखावा ही है समाज में, कोई विरला होता है जिसे ये आग पकड़ ले और फिर उसके जीवन से वो दिखाई देता है, भूख प्यास मिट जाती है और कुछ समझ में नहीं आता, सारे मोह के बंधन टूट जाते, रहता है परिवार में, पर परिवार में मन नहीं होता, शरीर होता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, ऐतिहासिक। एक नाविक, नाव चलाने वाला, समझ गए कि वो और लंबा करने वाले। धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। क्योंकि काफी लंबी साकी, आधा घंटा लग जाएगा, रहने ही देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करेगा। साकी है बड़ी प्रेम वाली, जरूर दास लेगा, चाली में ही ले लेगा। कोई बस वो ऐसा कोई प्रकरण होना चाहिए ना, कोई पॉइंट आना चाहिए, तो फिर वहाँ पे वो साकी शूट करती है। धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं नीचे, सेवादार दिखाते हैं ना, भाई साहब हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ बोल के छोड़ देते हो कि आप लोगे जबरी साहब जी के अर्थ लोगे, ये करोगे वो करोगे, करते हो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी मैं सच कहता हूँ, विश्वास करना मैं जो कह रहा हूँ गुरु साहब जी के हजूरी में, 99% पहले मैं जब करता था ना तो बड़ा सोच के आता था क्या करना है क्या नहीं करना। अब उन बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी कि यहाँ बैठकर गुरु करवाता है, मुझे नहीं पता होता कि 80% मैं सोच के आता हूँ, पर 80% वो बुलवाता है जो वो बुलवाता है, मैं कुछ और सोच के आया होता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये इसमें आनंद है, क्योंकि गुरु क्या कहलवाना चाहता है, किसके मन की क्या भावना है, क्या किसी के मन के क्वेश्चन है, वो पूरे करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में ना बोलने वाला नहीं, गुरु नानक बुलवा रहा होता है सर पे हाथ रख के। और ये बात इसीलिए कहते हैं, मैं कीर्तन करके उठता हूँ, लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे करवाने वाला हो। यहाँ पे बैठा हूँ तो उसकी कृपा है, नीचे उतरता हूँ तो मैं कोई कृपा नहीं बरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक सब तेरी वडियाई। बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े साहब वाले ने क्या कहा था कि जो सत्संगत में नहीं समझा, मैं अकेले में क्या समझाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मेरे पास अपने सवाल लेके आते हो, अब यहाँ नहीं समझा जो, मैं कमरे में क्या समझा दूंगा, क्या समझा दूंगा। यहाँ पर तो गुरु नानक की कृपा बरत रही है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, वो ज्ञान दे रहा है। अगर यहाँ नहीं बात समझ में आ रही, फिर कमरे में अकेले में आके भाई साहब ये सवाल है, सवाल होते पुराने ही, ऐसे ही होता है, टाइम पास ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होता है जिसको सच में प्यास हो, बात समझ में आ जाती, बाकी सबको बात करने का कोई बहाना चाहिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ प्रेम करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता, पर कीर्तन करने के बाद ना बात करने का मन नहीं होता। मैं अवॉइड करता हूँ सबको कि भाई कीर्तन हो गया, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अपने गुरु के दर्शन कर लिए, अब फिर से कमरे में आके मिलना कुछ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेके आए, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो गिफ्ट के बदले वही पैसे आप नानक रोटी के लंगर में डाल दो, समझो मुझे मिल गए। विश्वास करो मैं कहने जा रहा हूँ, आप मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देते हो, 90% मैं सामान बेचता हूँ, या तो संगत में बांट देता हूँ या तो बेचता हूँ, पैसे चाहिए ना।
पैसों से लंगर चलेगा, पैसों से खर्चे चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनडायरेक्टली आपसे सोचो पैसे मांग रहे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, गुरु की मेहर से संगत का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ सब कुछ है। मैं एक पॉइंट समझा रहा हूँ, आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेके आते हो, वो काम नहीं आते। ड्राई फ्रूट बिक जाता है, बाकी सारी चीज़ें बांट देते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सब कहते हैं बोला मत करो स्टेज पे ये सब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आप मेरे अपने हो, बात को समझो, आपके पैसे वेस्ट मत करो, किसी ज़रूरतमंद को दो। मुझे इतने सारे गिफ्ट ला के दे दो कि आप बताओ मैं खा सकता हूँ? इतने महंगे कपड़े ला के दे दोगे मुझे, क्या आपको लगता है मैं पहन सकता हूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे का सही इस्तेमाल करो। और मिल लिया, देख लिया, यहाँ पे गुरु नानक के दर्शन कर लिए, ज्ञान यहाँ से मिल गया। और कौन से सवाल बचते हैं? अगर सच में सवाल बचते हैं तो पुरानी कीर्तन सुन लो, हर चीज़ का जवाब वाणी में दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मेरे पास आना है तो वही है जिसके 40 माला कम से कम मूल मंत्र का नेम हो। 40 माला मूल मंत्र का नेम हो, फिर आके मुझसे पूछो भाई आगे क्या करना है, तो मुझे खुशी होगी, चाहे रास्ता बताएं इसे। ऐसे ही 6 माला नेम है, 13 माला नेम है, आके बैठ जाते हैं, 10वें द्वार खोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, नित्य नेम पक्का हो, बिल्कुल ना छूटता हो, अमृत वेले की दात मिल गई हो, 40 माले कम से कम मूल मंत्र का नेम हो, फिर आके मिलो, सवाल पूछो। बाकी सवाल मत पूछो, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, थका होता हूँ, मैं रात से आया होता हूँ, फिर यहाँ पे 2-3 घंटे लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। तो इसलिए मुझे बाहर से संगत आती है ना बहुत, तो इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं नहीं मिलने में कुछ नहीं रखा। मिलना किसे है? गुरु नानक से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेन पॉइंट ये है, गुरु नानक से मिलना है। उसे मिलने के लिए ये कीर्तन है, सत्संगत है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अवस्था बन जाए। कौन सी? मन बैराग बैराग माया, मन बैराग माया, दर्शन देखने का चाओ, 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 चाओ। मन बैराग गया, मन बैराग गया, मन बैराग गया। काली कोयल चित गुण काली, चित गुण काली, काली कोयल तू कित गुण काली, कित गुण काली, काली कोयल तू चित गुण काली, चित गुण काली, काली कोयल तू कित गुण काली, कित गुण काली। अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के, अपने प्रीतम के अमीर है जाने। काली कोयल तू कित गुण काली, कित गुण काली, काली कोयल तू चित गुण काली,
काली कोयल कित गुण काली, कित गुण काली, कित गुण काली, काली कोयल तुम कित गुण काली, काली कोयल कित गुण काली, कित गुण काली, काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली, कित गुण काली, कित गुण काली। अपने प्रीतम के, 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 ओ बीर है जाले, काली कोयल तुम कित गुण काली, कित गुण काली। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए, चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा, श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जो की शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करक करत हूँ कब हो। मैं बिन तो देता
कर सबों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप आपने मोजे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुध है जेती तो पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कै कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोरा वकई पोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकटने है रक्षा होई ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहरो ताके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाई दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सभागे सबद वाजे कला जित कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत के
कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद धूरे सलो पवन गुरु पानी पीता माता तक मात दूसरा बदाई गाया खेले सबद रात चंगियाइयां बुरियां आइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी मेरे मन में गुरु जी मेरे तन में गुरु जी हर सांस में गुरु जी धड़कन में मेरा तुझ संग रिश्ता पुराना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। है मन में जो चिंता हो तेरे नाम से मिट जाती है मन में जो चिंता हो तुम ही भाई बहन अब मेरे तुम ही माता पिता हो तुम ही भाई बहन अब मेरे तुम ही माता पिता हो ये रिश्ता यूं ही निभाना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
यही तमन्ना दर तेरे पे गाऊं। ओ सागर की बस यही तमन्ना दर तेरे पे गाऊं। मुझको दाता इतना दिया मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। मुझको दाता इतना दिया मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। मेरा सपना पूरा कराना मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Shiva
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।